Welcome students. The next topic of surface chemistry is types of adsorption. Depending upon the nature of forces which holds the molecules of the adsorbate on the surface of adsorbent, the adsorption are classified into two types, physical adsorption and chemical adsorption, which is also known as physiosorption and chemisorption. So it says एड्जॉर्प्शन जो है इसकी जो टाइप्स हमने दो डिस्कस की हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. इट सिंपली डिपेंड्स, दिस क्लासिफिकेशन इज सिंपली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट. जैसे मैंने आपको एड्जॉर्प्शन समझा दिया हुआ है, किसी भी सरफेस पे जब कोई मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब्ड हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज एड्जॉर्प्शन. ये आपका एडसॉर्बेंट है और ये आपका एडसॉर्बेट है. अब इन एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच की जो फोर्सेस है, that forces depends the classification of adsorption into two types, that is physical adsorption and chemical adsorption. If the forces in adsorption is weak, like weak forces are van der Waals forces. If there are weak forces of attraction between adsorbate and adsorbent, and weak forces, these are the van der Waals forces. If there are weak forces like van der Waals forces between adsorbate and adsorbent, this type of adsorption is simply known as physical adsorption, or which is also known as physiosorption. इसको हमने न्यू नेम फ्रेम किया है, that is known as physical adsorption or physiosorption. Simply it is derived from physical adsorption. This name is derived from physical adsorption. And if the forces between adsorbate and adsorbent is chemical forces like chemical bond, you can say, if there exists chemical bond between adsorbate एंड एडसॉर्बेंट, अगर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और केमिकल बॉन्ड जो मोस्टली होते हैं दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. सो इफ देयर इज कोवलेंट बॉन्ड formed between adsorbate and adsorbent, or you can say if there are chemical forces or chemical bonds exist between adsorbate and adsorbent, then this type of adsorption is known as chemical adsorption, and the name derived from chemical adsorption is chemisorption. Okay, so the force between adsorbate and adsorbent molecule are strong chemical forces. अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, और ज़्यादातर केमिकल फोर्सेस जो हैं उनमें ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे जो वीक फोर्सेस हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं. एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज एग्जिस्ट इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एंड द स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस बिटवीन adsorbate and adsorbent are found in chemical adsorption or chemisorption. Okay, so second difference between these two adsorption is it is not specific in nature but it is highly specific in nature. क्या बताया मैंने आपको कि physical adsorption जो है वो specific नहीं है, that is not specific in nature, but chemical adsorption is highly specific in nature. इसको आप कैसे समझोगे? इसका मतलब है कि physical adsorption जो है वो किसी भी adsorbent की किसी भी एडसॉर्बेट के साथ हो सकती है. यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बिकॉज देर आर ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट.
ठीक है, जैसे पानी, अगर पानी जो है किसी वुड के ऊपर एब्जॉर्ब्ड होता है, सो दैट इज देयर एग्जिस्ट द वीक फोर्सेस बिटवीन वाटर एंड वुड, सो दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एब्जॉर्प्शन विच इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। किसी के बीच में भी आप फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन हम कह रहे हैं दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है, स्पेसिफिक वर्ड का क्या मतलब है? स्पेसिफिक वर्ड का यहाँ पे ये मतलब है, इफ देयर इज टेंडेंसी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड बिटवीन adsorbate and adsorbent. Okay, if there is tendency to form a chemical bond between adsorbate and adsorbent, then there is the possibility of existence of this chemisorption, or you can say chemical adsorption. Chemical adsorption तभी possible होगी अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में टेंडेंसी है केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट होने की, तभी वहां पे केमिकल एड्सॉर्प्शन एग्जिस्ट करेगी, जिसको हम केमिसॉर्प्शन भी कह रहे हैं। इसीलिए डिफरेंस में हमने लिखा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो किसी के बीच में भी एग्जिस्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें वीक फोर्सेस चाहिए होती हैं, इसलिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम कह रहे हैं दैट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, बट केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन nature. Now our third point is it is reversible in nature. Okay, but chemical adsorption is irreversible in nature. So this is very simple. As you know, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आपकी वीक फोर्सेस हैं, वैंडरवाल फोर्सेस हैं, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है, जैसे हम अगर पानी को सुखा दें तो पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसको हम रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो प्रोसेस एक बार एड्सॉर्ब्ड हो गई चीज, उसके बीच में केमिकल बॉन्ड्स बन चुके हैं, केमिकल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, वो एड्सॉर्प्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे प्रोसेसेस जो हैं दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। दिस इज टू सिंपल। फोर्थ पॉइंट इज इंथैल्पी विच इज नोन एज हीट. You know, enthalpy of adsorption is low in case of physical adsorption, which is mentioned here is 20 to 40 kilojoule per mole. But enthalpy of adsorption is high in chemisorption or chemical adsorption. ठीक है, like 40 to 200 kilojoule per mole यहाँ पे exist करती है इतनी heat. इसका क्या मतलब है? As you know, in physical adsorption में क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बता रहे हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट इज लो. ओके, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है और लो है फोर्सेस जो हैं. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, वहां पे इंथैल्पी जो हीट जो निकलेगी जब एड्सॉर्प्शन होगी, तो जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगी, कहने का मतलब जो हीट इवॉल्व होगी, अगर नहीं समझ आ रहा है तो जो हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, इस एड्सॉर्प्शन के टाइम जितनी भी हीट इवॉल्व होगी दैट हीट इज वेरी लो, almost 20 to 40 kilojoule per mole. Okay, in case of physical adsorption, because this type of adsorption between adsorbate and adsorbent, there exists the weak van der Waals forces. So this force of attraction is weak. So during adsorption, the heat evolved is very low, like 20 to 40 kilojoule per mole. But as you know, in chemical adsorption, as I am already explained you, there is a strong chemical forces or chemical bond exists between adsorbate and adsorbent. तो यहाँ पे जो हीट इवॉल्व, बिकॉज यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज वेरी हाई, तो इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी मैकेनिज्म एड्सॉर्प्शन का समझाया था कि एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब्ड होगा तो जो मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे होगा उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, उस एनर्जी हाई को वो रिलीज करता है जब उस पे दूसरा मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब्ड करता है, तो सरफेस का मॉलिक्यूल जो है वो अपने से एनर्जी को रिलीज करता है, एंड दैट एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी इवॉल्व्ड इज वेरी हाई because there is greater force of attraction between adsorbate and adsorbent,
एंड दिस एनर्जी इवॉल्व इज वेरी हाई, हाई आप समझ सकते हो 40 से 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है दैट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस केमिसॉर्प्शन. Now next point, fifth point of our difference between physical adsorption and chemical adsorption, that it depends upon the nature of gas. More easily liquefiable gases adsorbed quickly like ammonia, like sulfur dioxide. ठीक है. And in case of chemical adsorption, it also depends upon the nature of gas. Gases which can react with the adsorbent show chemisorption. So फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये कह रहा है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये डिपेंड करता है किस तरह का नेचर है गैसेस का. तो ये डिपेंड करता है, ये हमने गैसेस स्टेट में इन योर प्रीवियस 11th क्लास हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में ये आपको बड़े अच्छे से बताया है कि जो गैसेस लिक्विफिकेशन होती है जिन गैसेस की इजीली, वो कौन सी गैसेस होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, बिकॉज देयर इज ए कंडीशन कि अबव क्रिटिकल टेम्परेचर नो गैस कैन बी लिक्विफाइड. सो दैट क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सप्लेन्स द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का हाई होगा वो उतनी ही जल्दी लिक्विफाई होगा, और जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी, नेचुरल सी बात है, जिसकी लिक्विफिकेशन जितनी ईजिली होगी उसकी एड्सॉर्प्शन भी, जैसे ये एक एड्सॉर्बेंट है, जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी वो उतनी ही जल्दी उसके ऊपर एड्सॉर्ब्ड होगी, यानी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस उसमें उतना ही ज्यादा हाई होगा. दिस इज अ फिजिकल फिनोमिना. बट इन केमिसॉर्प्शन इट सेज दैट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ. केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी ये नेचर ऑफ गैस पे ही डिपेंड करेगा. गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट दैट शो केमिसॉर्प्शन. ओके, सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन. सो टेम्परेचर का क्या रोल है एड्सॉर्प्शन में, तो यहाँ पे हम ग्राफिकली आपको बता रहे हैं, ये मैंने ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट किया है x/m वर्सेस टेम्परेचर. टेम्परेचर तो आपको पता है ना, व्हाट इज x/m. x/m बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, दिस इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. ये हम ग्राफिकली बता रहे हैं आपको कि एक्सटेंट होता है कितनी मात्रा में, किसी चीज का माप तोल करने के लिए हम एक्सटेंट वर्ड यूज करते हैं कि कितने एक्सटेंट में वहां पे एड्सॉर्प्शन हो रही है, जिसमें x जो है दिस इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेट. x को हम ले रहे हैं मास ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m को हम ले रहे हैं मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. ये हमने दोनों के मासेस ले लिए, एड्सॉर्बेट का भी और एड्सॉर्बेंट का भी. ठीक है, तो इस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जैसे आपको बता रहे हैं वर्सेस टेम्परेचर, जब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो विल सी हियर दैट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो कम होती जा रही है. इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जैसे हमें पता है देयर इज द वीक वैंडरवाल फोर्सेस, यहाँ पे कोई केमिकल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं. सो ऐसे केसेस में हमें जो एड्सॉर्प्शन है वो हमेशा फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो आपको एड्सॉर्प्शन मिलेगी वो आपको लो टेम्परेचर पे मिलेगी. लो टेम्परेचर पे आपको फिजिकल एड्सॉर्प्शन मिलेगी. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे आपको एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती नजर आएगी. ठीक है, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होती नजर आएगी क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपको रिवर्स प्रोसेस मिलना शुरू हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी, रिमूवल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो कम होगी, डिसॉर्प्शन प्रोसेस होगा, रिवर्स प्रोसेस, बिकॉज ये हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दिस फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज योर रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा. बट अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन we have written here that adsorption first increases with increase in rise of temperature. This initial increase in adsorption with increase in temperature is due to the fact that it provides the necessary activation energy. Further increase of temperature will increase the energy of molecules which have already been adsorbed. Hence, after certain temperature, extent of adsorption decreases. Okay. Now I am going to explain all this. इसने कहा केमिकल एड्सॉर्प्शन में अगर हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को टेम्परेचर वर्सेस लेते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर के राइज करने से एड्सॉर्प्शन जो है, इसको हम इस ग्राफ को हम एड्सॉर्प्शन आइसोबार भी कहते हैं. इसको हम एड्सॉर्प्शन, दिस ग्राफिक रिप्रेजेंट इज आल्सो नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x/m को हम क्या देख रहे हैं, ये पहले टेम्परेचर के साथ इनिशियली
राइज कर रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो जब भी एड्सॉर्प्शन होगी उसका क्या मतलब होता है कि ये एक एड्सॉर्बेंट है और उसके ऊपर एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो केमिकल फोर्सेस के साथ साथ केमिकोवलेंट बॉन्डिंग के साथ इसके साथ एड्सॉर्प्शन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब एड्सॉर्प्शन हो गई, पहले तो क्या होगा, पहले यहाँ पे सरफेस एरिया काफी होगा, सरफेस एरिया खाली होगा, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके ऊपर एड्सॉर्ब होते जाएंगे। एक फैक्ट तो इसका ये है कि मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते जाएंगे बिकॉज देयर इज लार्जर सरफेस एरिया। बट जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा, रादर सरफेस एरिया खत्म हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल जो है उसकी एड्सॉर्प्शन रुक जाएगी। ओके, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे भी लेकिन एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले तो जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया वो ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचे। ये वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया एक्टिवेशन एनर्जी। वो आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट देम इनटू द प्रोडक्ट्स। तो पहले उन्होंने उस एक्टिवेशन एनर्जी को गेन किया, उस एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करके उन्होंने अपना प्रोसेस किया, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ती गई और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता गया। लेकिन जैसे फर्दर राइज किया तो राइज करने का कोई फायदा नहीं हुआ टेम्परेचर, क्योंकि सरफेस एरिया वहां पे नहीं था। सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो थी वो डिक्रीज होने लगी, क्योंकि बेशक केमिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर आपको हाई चाहिए, हालांकि यहाँ हाई टेम्परेचर भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो आपको लो में भी मिलेगी, वो आपको हाई में भी मिलेगी, वो आपको इंटरमीडिएट में भी मिलेगी, वो आपको किसी भी टेम्परेचर पे मिल सकती है। एट एनी टेम्परेचर यू कैन फाइंड दिस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है विच इज स्पेसिफिकली एट फाइंड यू एट लो टेम्परेचर, बट इन केमिकल एड्सॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन can be found in at any temperature, either at low or high or at intermediate temperature, but after certain temperature extent of adsorption goes on decreasing because of decrease in the surface area. So that's why there is written that this initial increase in adsorption with increase in temperature is due to the fact that it provides the necessary activation energy. क्योंकि पहले टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए थी उस बैरियर तक, इस बैरियर तक पहुंचने के लिए, जिस बैरियर को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जहां यहाँ इस बैरियर के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है पहुंचने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो। सो इस एक्टिवेशन एनर्जी पे आने के लिए उनको टेम्परेचर की जरूरत थी। जब वो यहाँ पर पहुंच गए तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं दैट इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। आफ्टर दैट further increase of temperature will increase the energy of molecules which have already been adsorbed. further अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा भी रहे हैं तो उससे सिर्फ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो हैं जो ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड हो रहे हैं उनको आगे सरफेस एरिया नहीं मिल रहा। हेंस आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर योर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन गोज ऑन डिक्रीजेस। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। Next point is no activation energy is needed. That is clear from the your previous point कि physical adsorption में आपने देखा यहाँ पे आपको कोई activation energy की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे adsorption आप low temperature में ही देख रहे हैं। यहाँ पे कोई chemical bond तो है नहीं कि जिसके लिए आपको chemical force बीच में exist कर रही है और molecule को बहुत ज्यादा energy की जरूरत पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे low temperature में ही physical adsorption जो है that is possible. So there is no activation energy is needed. But in chemical adsorption there is high activation energy is needed. Next point is it depends upon the surface area. ये भी आपको क्लियर हो गया है कि सरफेस एरिया तो दोनों के लिए चाहिए, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो आपका केमिकल है। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, जैसे देखो अगर मैंने एक बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, और इतना ही क्वांटिटी का पानी मैंने फर्श पे फेंक दिया, ठीक है, तो अब मैंने इसको सनलाइट में रख दिया, दोनों चीजों को सनलाइट में ही रखा है, फर्श भी हमारा बाहर है और बीकर भी मैंने धूप में बाहर रखा है, तो ड्यू टू सन रेज इसकी भी वेपोरेशन हो रही है, इसकी भी वेपोरेशन हो रही है, तो किसकी वेपोरेशन ज्यादा होगी? जो मैंने फर्श पे पानी फेंका है, बिकॉज यहाँ पे इसका उतने ही पानी का, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण यहाँ पे इसकी वेपोरेशन ज्यादा हो रही है, यहाँ पे इसकी वेपोरेशन जो है वो कम होगी पानी की, ठीक है, बिकॉज देयर इज यहाँ पे सरफेस एरिया जो है पानी का वो कम है। सो यही चीज यहाँ लिखी है कि डिपेंड्स ऑन द
surface area, it increases with the increase in surface area. In case of chemical adsorption, it also depends upon the surface area. It too increases with the increase in surface area. तो surface area का रोल जो है वो दोनों में रहेगा, चाहे weak forces होंगी, van der Waals forces होंगी, चाहे chemical forces होंगी. So last point यहाँ पे जो मैंने mention किया है, that is results into multi-molecular layer on the adsorbent surface under high pressure. But in case of chemical adsorption, it results into only unimolecular layer. So this is also clear because in case of physical adsorption यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हमने वही मैंने एग्जांपल ली कि वुड है, उसके ऊपर अगर हमने पानी को एड्सॉर्ब किया है तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एड्सॉर्ब्ड होंगे. जरूरी नहीं है कि एक लेयर में होंगे, हो सकता है 2 लेयर में एड्सॉर्ब्ड हो सकता है 3 लेयर में एड्सॉर्ब्ड हो. यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पे मल्टी लेयर्स बनती हैं. लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में बिकॉज यहाँ पे क्या है, केमिकल बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली एग्जिस्ट कर रहे हैं बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर बनती है, दैट इज द यूनिमॉलिक्यूलर लेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. सो नेक्स्ट फैक्टर्स जो हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में बताएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके.